ओके। तो अब जो है हम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एमबीए की उसके ऊपर बात करेंगे। सो कैन यू टेल मी हु इज विद मी? जी जी मैडम। ठीक है, गुड। सो व्हाट आर योर की स्टेप्स? फॉर एग्जांपल अब जो है हम कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर डिस्कशन जिसमें जो है एग्जामिनर सिर्फ आपसे क्वेश्चंस कर रही है, ठीक है, और आपको उसके आंसर करने हैं। गॉट इट? तो व्हाट आर योर key steps in which you can prevent any risk or complication? रीड करती जाओ। Okay, madam. First, careful selection of the patient. हम्म। Um, I will review the indication and rule out the contraindication by taking the brief history from the patient, and I will confirm the gestational age by the transvaginal ultrasound scan or to assess the uterine position by manual examination, and I will do her cervical ripening हम्म। with misoprostol हम्म। and pre-procedure preparation. Sorry, madam. ठीक है। I will give her analgesia, oral analgesia, as well as paracervical block. Uh, and हम्म। I will also take care during the cannula insertion, and I will use the appropriate size of the cannula हम्म। according to the uterine size and avoid the forceful insertion of the cannula. हम्म। Gently rotate while advancing and stop if the resistance is felt. हम्म। I will measure the depth of the uterine cavity. Um, हम्म। um, right, and uh, uh, during aspiration, I will maintain the pressure, हम्म। suction pressure, which is up to 60 to 80 millimeter of mercury. Rotate the cannula in 180 direction, gently and out motion, and avoid the withdrawing beyond the cervical os. हम्म। I will stop when I felt the uterine cavity is empty हम्म। uh, uh, by um, by certain sign and symptom, which is when the red or the pink froth is coming, where there is gritty sensation felt, and the cannula, uterine cavity is hugged up on the cannula, and the patient is felt हम्म। cramping pain. हम्म। And post aspiration, I will inspect the aspirate for the presence or absence of the chorionic villi, and I will administer the uterotonic, that is 10 international unit of the oxytocin to reduce the bleeding. ओके। सो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले किसी भी एमबीए को हम जब परफॉर्म करेंगे तो हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे कि हम किसी भी किस्म का कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंट करें। ओके। देर आर सर्टेन Okay. की स्टेप्स। अब अगर इसको हेडिंग वाइज हम बोलें, देर आर एक्चुअली की स्टेप्स विच वी कैन टेक, इंक्लूडिंग द प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन, while cannula insertion, while aspiration technique, and while post aspiration. So, while adopting these, we can prevent any perforation or any complication of the MBA। ठीक, इस तरह से करके आपने इनको बता दिया कि आप प्री प्रोसीजर क्या करोगे, कि ये पॉइंट्स है कि आप टीवीएस के जरिए यूट्रस की पोजीशन, जो साइज है वो आपने मिसोप्रोस्टोल दे दिया और आपने पेन मैनेजमेंट की। दूसरा, जब आप कैनुला इंसर्ट करते होगे तो आप जो सेक है उसी के अकॉर्डिंग कैनुला साइज इस्तेमाल करोगे। आप फोर्सफुल इंसर्शन अवॉइड करोगे, और जो है आप एस्पिरेशन के दौरान कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करोगे जो कि आपको अवॉइड करेंगी कोई भी मिसहैप से, मिस कॉम्प्लिकेशन से। एंड यू विल स्टॉप द प्रोसीजर व्हेन यू फील दोज इंपॉर्टेंट साइंस। आफ्टर द पोस्ट एस्पिरेशन आप जो हो, यू इंस्पेक्ट कि आपके जो वो है कंप्लीट है एवाक्युएशन और नॉट। नाउ ये तो थी कुछ स्टेप्स। द अदर थिंग इज कि अब एग्जामिनर आपसे पूछती है कि ओके, what are the signs in which you can suspect that uterine perforation has occurred? What are your signs? Are you there? Hello.
जी जी, आवाज आ रही हेलो। है। जी मैडम, मैंने म्यूट म्यूट अनम्यूट नहीं किया था। हम्म। Madam, there are certain signs which हम्म। are intraoperative sign, that is, sudden loss of resistance, cannula advances beyond the uterine depth, and हम्म। visible omentum of bowel in the aspirate, unexplained hemodynamic instability, and the excessive bleeding that is more than 250 ml. And post-operatively, we can suspect the perforation by if the patient is having severe abdominal pain or distension, if there is heavy vaginal bleeding, that is she's soaking, when she soaked more than 2 pads per hour, fever more than 38 degrees centigrade, or foul smelling discharge. And if there is sign of peritonitis, rebound tenderness, symptoms of bowel obstruction, that is if the intractable vomiting हम्म। and abdominal distension. गुड। सो ये कुछ ऐसे साइंस जो कि आप इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव देख सकते हैं इन केस ऑफ सस्पिशन ऑफ परफोरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एमबीए। ठीक है। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। अभी सीपीएसपी रोज बरोज नए रिकॉर्ड ला रहा है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि एक परफोरेशन का सिनेरियो विद एमवीए रख दें और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको स्ट्रक्चर डिस्कशन में क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, या टीचिंग में पूछे किसी भी तरीके से। ठीक है मैडम। So, what are your immediate actions that you perform, okay, while you ओके suspect a मैडम। perforation? Okay, madam. When the perforation is suspected, I will immediately stop the procedure, Hmm. involve my senior, Hmm. and check for the hemodynamic stability of the patient. I will check Hmm. the vital sign, abdominal distension, Hmm. heavy vaginal bleeding, Hmm. and I will perform the transvaginal ultrasound scan to check for the fluid or the Hmm. retained tissue. Hmm. And if the patient is if and I will also give the broad spectrum antibiotic. If Hmm. the patient is unstable by vital sign, that is having tachycardia or hypotension, Hmm. I will start the resuscitation with crystalloid and arrange and transfuse the blood if the hemoglobin is Hmm. less than if there is low hemoglobin and Yeah. uh, Hmm. yes ma'am. Hmm. ओके uh, गुड। सो इसमें मतलब आप क्या करते हो कि ये हर तरह की जो है वो परफोरेशन हो या कोई भी आप इंजरी हो कुछ भी हो, बाउल परफोरेशन हो, आप यही स्टेप्स होते हैं। यू स्टॉप द प्रोसीजर, यू इन्फॉर्म द जो आपकी सीनियर है एमडीटी इन्वॉल्व कर देते हो। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहती हूँ कि आप रेड में इसको करें। ये है, ठीक है। अब होता क्या है, हम एमबीए परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक ये कि कैनुला हम वहीं पे रहने दें, और उसके बाद जो है हम लेप्रोटमी लेप्रोस्कोपी जो या अल्ट्रासाउंड जो हम देखना चाह रहे हैं वो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। एमबीए ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जानते हो वैक्यूम क्रिएट होता है। सही है, वो क्या करता है, वो सक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्रस को एमबीए कर रही हूँ और उसके ऊपर फंडस के ऊपर परफोरेशन आती है कुछ भी होता है, तो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो उसके विजराज हैं वो क्या है, गट है, पेरिटोनियम है। ये क्या कर सकता है, ये वैक्यूम जो है उनको पकड़ सकता है। सही है, उनको जो है एकदम से ये जैसे सक्शन वो कंट्रासेप्शन डिवाइसेस की कर रहा था, वो सॉरी कंसेप्टर्स की कर रहा था, आरपीओसीज की कर रहा था, उसी तरह वो सक्शन स्टार्ट कर देगा गट की या जो इंट्रा abdominal स्ट्रक्चर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी रिलीज द वैक्यूम प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दो कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग जो है कैनुला को रहने देते हैं और कुछ रिमूव करते हैं। सो आई सर्च आवर गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस भी दी हैं, हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो है हम कैनुला रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो डॉक्टर सरूर है उनका जो लेक्चर है उसमें यह है कि आप कैनुला को उसी जगह पे रहने देते हो और फिर बाकी जो आपकी मैनेजमेंट है आप उसको प्रोसीड करते हो, ठीक है। सो
बाकी वही है, आप या लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी या विद जो भी उसका अपने प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है आपका मैनेजमेंट वो आप प्रोसीड करते हो, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द types of perforation? Can you tell me how many types of perforation are there? मैडम ये रीड कर लो। हाँ हाँ, रीड ही करना है बच्चे, सारा रीड ही Okay. करना There is small perforation that is less than 1 centimeter diameter. है। It is minimal bleeding, no visceral injury. So we will manage this conservatively, and हम्म we will monitor the patient for 24 to 48 hours with हम्म antibiotic cover and the serial abdominal examination. हम्म If the perforation is large, that is more than 1 centimeter, and there is active bleeding, omentum of bowel visible, हम्म, then then we will immediately proceed with the laparoscopy or laparotomy, depending upon the expertise available to गुड। inspect and to repair. हम्म, ओके। तो इसका मतलब हमारी मैनेजमेंट हमारे साइज पे, परफोरेशन की और जो एक्सपर्टीज अवेलेबल है उन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर छोटा सा होगा हम उसको कंजर्वेटिव अप्रोच से कर सकते हैं, बड़ा होगा तो हम उसको जो है सर्जिकली मैनेज करेंगे। ओके, ये था उसका खुलासा। So now, Dr. Saiba, how you will tell me what type of sites are important, or how किस site specific जो है perforations, can you tell me which is the commonest or which area is more prone? Any information regarding that? Then ये anterior wall. read this table. Okay, madam. Uh, uh, Fundal is the lower risk of major vessel injury associated. मैडम आप पूछ रही हैं कि कौन सी साइड मोस्ट हम्म, कॉमनेस्ट है, तो उसमें तो और नहीं उसके, लिखा हुआ। हाँ, ये नजर आ रही है टेबल आपको? टेबल तो नजर आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, इसमें ये है कि देर आर जो हमारी मैनेजमेंट है वो साइट पे भी बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द परफोरेशन इज फंडल, ठीक है, यूजुअली एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ द मेजर ब्लड वेसल्स इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंडस पे वो होता है, इंजरी होती है, वहां पे लो रिस्क हम उसको कंसीडर करते हैं और बड़े बड़े वेसल्स वहां पे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। हम इन ऐसों को यूजुअली कंजर्वेटिव अप्रोच कर सकते हैं, सही। लेकिन हमारे पास अब जो सबसे हाई रिस्क कौन सा है, वहां पे हमारे पास लेटरल, जैसे कि कॉर्नुआ या लेटरल इंजरीज होती हैं, वो हाई रिस्क होती हैं, क्योंकि वहां पे रिस्क ऑफ यूट्राइन आर्टरी इंजरी होती है, दे रिक्वायर अर्जेंट लेप्रोस्कोपी, ठीक है, अलोंग विद द वेसल लाइगेशन एंड एम्बोलाइजेशन अगर जो जरूरी है। फिर कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं जैसे लोकेशन वाइज सर्वाइकल इंजरी होती है, वहां पे हमारे पास देर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ ब्रॉड लिगामेंट हेमाटोमा, एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे अगर होगी वो भी हाई रिस्क है, क्योंकि वहां पे ब्लैडर और बाउल इंजरी हो सकती है। तो ये कुछ है साइट स्पेसिफिक रिस्क एंड देयर मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट साइट्स इन विच इंजरी कैन अकर एंड हाउ, मतलब उनका रिस्क कितना है, आइदर दे आर हाई रिस्क और लो रिस्क, एंड व्हाट एक्शंस यू आर गोइंग टू टेक। गॉट इट? तो मैडम मोस्ट कॉमनेस्ट साइड कौन सी होती है, एंटीरियर वॉल होती है? एंटीरियर, यस एग्जैक्टली, ठीक है, एंटीरियर वन इज। अब एंटीरियर में भी वो लोअर पे हुई है, ठीक है, ये भी तो देखना पड़ेगा कि लोअर सेगमेंट पे हुई है या एंटीरियर में मोर टुवर्ड्स द फंडस कहाँ पे हुई है। ये सारे फैक्टर्स हम मिला के पे डिसाइड करते हैं कि इसको कंजर्वेटिवली अप्रोच करना है या मुझे इमीडिएट इसमें लेप्रोटमी लेप्रोस्कोपी करना है, वो ठीक है, इस तरह से। ये तो हो गया आपका इंटरवेंशंस, आपने सर्जिकली क्या इंटरवेंशंस की। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करेंगे? यूट्रस विल बी रिपेयर्ड जैसे हम बाकी यूट्रस को रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो परफोरेशन है वो उसकी रिपेयर टेक्निक वही रहती है जिस तरह से हम यूट्रस को रिपेयर करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैडर और जो बाउल है, आप उसकी एमडीटी को इन्वॉल्व करते हुए जो उसका रूटीन है रिपेयर वो उसी तरह से होगा। सो डॉक्टर साहबा, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर पोस्ट प्रोसीजर केयर फॉर परफोरेशन? मैम फॉर द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और फॉर आफ्टर द रिपेयर। वेट, मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर।
वेट, स्क्रीन इज पॉज्ड विद यू। आपको स्क्रीन पोस्ट परफोरेशन केयर नजर आ रही है? नहीं मैडम, नहीं, पुरानी वाली है, साइट स्पेसिफिक। यही मसला हो रहा है, ठीक है वेट। हम्म, अब है आपके सामने पोस्ट परफोरेशन केयर। जी मैडम। Okay. So what is the post perforation care that you are going to provide? Okay, madam. We will give broad spectrum antibiotic in the form of injection co-amoxiclav plus Hmm. gentamicin for 5 to 7 days, and we will follow up with pelvic ultrasound at 6 weeks post procedure to assess the healing, and we will also counsel on the future pregnancy risk. That is, there is increased risk of placenta accreta if the scarred uterus or the preterm labor if the myometrial thinning. Okay, great. So ये एक समरी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल रिगार्डिंग द परफोरेशन। सो हमने आज दो कवर कर लिए, दैट इज एमबीए के टीचिंग, एंड अगर एमबीए में परफोरेशन होती है तो कैसे मैनेज करते हैं उसका, किस तरह से हम उसको अप्रोच करते हैं, हम उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं और उसको कैसे रिपेयर करते हैं। रिपेयर के लिए जो है आपके पास कौन कौन सी वो होनी चाहिए, चीजों को आप कंसीडर करते हो, उसमें साइज है, उसमें लोकेशन है, और एक्सटेंट ऑफ इंजरी है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एमडीटी रिक्वायर्ड है या नहीं है। आप इस इन चीजों के बेसिस पर करते हो, फिर आप उसको पोस्ट प्रोसीजर केयर देते हो और जो है उसको फॉलो अप करते हो। ये दैट्स ऑल जो हमने आज कवर किया। इनसे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट वेलकम। कोई क्वेश्चन? अपने अंदर ये रिफ्लेक्स डालें कि एक टॉपिक को आप आदी हो चुके हैं ना, बस रूटीन की तरह से पढ़ने की, बस एमबीए है तो एमबीए टीचिंग है। आप एक टॉपिक के साथ दो तीन चीजें एक साथ पढ़ोगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। जैसे आज अगर एमबीए पढ़ा, एमबीए के साथ उसकी परफोरेशन पढ़ी, परफोरेशन मैनेजमेंट पढ़ी, तो आपको ये आगे रिवीजन में इसी तरह से आसानी होगी। ठीक है, जी मैडम। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह मैडम। अल्लाह हाफिज़। जजाकल्ला। आप लोगों का भी थैंक्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।